بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ وہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ اس حویلی کے تہہ خانے میں کھڑی تھی۔ اسے نوین کی باتوں پر کچھ یقین آیا تھا اور کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب یہاں ہر طرف بکھری ہوئی کتابیں دیکھ کر اس کی بات کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ کتابیں دیواروں کے ساتھ لگے شیلفوں میں رکھی ہوئی تھی، کچھ فرش پر ڈھیر کی شکل میں جمع تھی جن میں دیمک لگ چکی تھی۔ بہت سی کتابوں کی جلدیں سیاہ تھی اور کچھ پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی توجہ کمرے کے عین درمیان میں رکھے ایک میز نے کھینچ لی۔ اس میز پر سیاہ کپڑے میں لپٹی ایک موٹی اور بہت بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب سے سبز رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے جھجک کر چند قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس میز کے قریب پہنچ کر دیکھا۔ میز پر پڑی ہوئی کتاب کو غور سے دیکھا تو یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھنے پر دل کچھ مطمئن ہوا تو اس نے کتاب پر لپٹا ہوا سیاہ رنگ کا کپڑا کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے جیسے ہی کپڑا کتاب پر سے ہٹایا، کتاب سے پھوٹتی سبز رنگ کی روشنی مزید تیز ہو گئی اور اس روشنی سے سارا کمرہ منور ہو گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے کتاب کو کھول دیا۔ کتاب کھولنے کے ساتھ ہی زوردار ہوائیں چلنے لگی۔ دروازے، کھڑکیاں زوردار آواز کے ساتھ سب بجنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا گویا ہوا کے زوردار دباؤ سے اکھڑ جائیں گی۔ اس نے آیت الکرسی کا ورد اور بھی تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہ حق دق رہ گئی کیونکہ کتاب کے اندر سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر وہ سخت خوف زدہ ہو گئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سہمی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ دوسرے لمحے جو اس نے دیکھا وہ ایسا ناقابل یقین منظر تھا کہ اسے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس کی۔ اس کا نام اریبہ تھا۔ وہ ایک 14 سال کی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ کرنل افتخار کی بیٹی تھی۔ کرنل افتخار ایک بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر پھر بھی انہیں فوج میں جانے کا شوق ہوا تو ان کے والد شبیر احمد نے انہیں روکا نہیں۔ وہ فوج میں چلے گئے اور ہر جگہ نمایاں کارکردگی دکھاتے رہے۔ اس دوران ان کے والد شبیر احمد ہی ساری جائیداد سنبھالتے رہے، مگر اب شبیر صاحب بے حد کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کرنل افتخار پر زور دیا تو وہ فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر اپنے والد کے پاس جا رہے تھے۔ اریبہ سے چھوٹا ایک بھائی تھا جس کی عمر ابھی محض 4 سال تھی۔ اس کا نام حیدر تھا۔ اریبہ کے لیے اپنے اسکول چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن ظاہر ہے کرنل افتخار اسے یہاں پر اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آج وہ اس کے ساتھ اسکول سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ اریبہ کے کمرے میں گئے تو وہ بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اریبہ بچے دیر ہو رہی ہے، کب اسکول جاؤ گی؟ زیادہ دیر ہوئی تو ٹیچرز نے ڈانٹنا ہے تمہیں، پھر منہ بسور کر بیٹھ جاؤ گی۔ شاباش، چلو جلدی کرو۔ ٹیچرز کے ڈانٹ کا ڈر کام کر گیا اور وہ اچھل کر بیٹھی اور جلدی سے دانت برش کرنے کے لیے دوڑ گئی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ناشتے کی میز پر تھی۔ کرنل افتخار اپنا سارا ڈسپلن اس میں انڈھیل چکے تھے اور مجال ہے کہ اریبہ کوئی بھی کام اپنے وقت سے آگے پیچھے پورا کرے۔ بس صبح اٹھنے میں وہ بہت تنگ کرتی تھی۔ اسکول جا کر اپنی سہیلیوں اور ٹیچر سے آخری بار مل کر انہیں الوداع کر کے وہ واپس آ گئی۔ اس کی امی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس شام وہ لوگ شبیر احمد، جنہیں اریبہ دادا ابو کے نام سے پکارتی تھی، ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شبیر احمد ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اپنی حویلی میں وہ اکیلے نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کی مرحومہ بیٹی کنیز فاطمہ کی بیٹی نوین بھی رہا کرتی تھی۔ نوین کے والد اور والدہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے اور ددیالیوں نے اسے اپنے نانا کی طرف بھیج کر ہر تعلق توڑ دیا۔ تب سے نوین یہیں رہتی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ دونوں ہی نانا ابو میں نظر آتے تھے۔ نوین سے اریبہ کی ملاقات تب ہوئی تھی جب وہ لوگ چھٹیوں میں یہاں آیا کرتے تھے۔ اس کی اریبہ سے اچھی خاصی نبھتی تھی۔ نوین نے اس کے لیے کمرے سیٹ کروا دیے اور وہ لوگ اپنے سامان کو ایک طرف رکھ کر بے خبر ہو کر سو گئے۔ اگلے دن اریبہ اٹھی تو اس کی نوین سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ نوین ایک دلچسپ شخصیت کی حامل لڑکی تھی، خاص طور پر بچے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچتے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کی ورک گردانی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک دیتے اریبہ نے پوچھا، نوین آپی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نوین نے چونک کر اسے دیکھا اور کتاب ہاتھ سے رکھ کر بولی،
अरे अरीबा तुम आओ अंदर आ जाओ। अरीबा मुस्कुराते उसके करीब जा बैठी और उसने कहा, अरे वाह नवीन आपी, आपने तो यहाँ पर खूब किताबें जमा कर रखी हैं। अरीबा की बात पर नवीन ने मुस्कुरा कर कहा, बस यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, दिल बहलाने के लिए किताबें ही हैं, इसलिए इनसे कुछ ज़्यादा ही दोस्ती कर रखी है मैंने। और फ़ायदा ही फ़ायदा इनसे, एक तो तरह तरह की नित नई मालूमात मिल जाती है और दूसरा वक्त भी अच्छा कट जाता है। अरीबा ने कहा, नवीन आपी, मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं अपने साथ अपनी ढेर सारी किताबें लेकर आई हूँ, आपने पढ़नी हो तो मुझे बताइएगा, मैं ला दूंगी आपको। नवीन ने प्यार से उसके बाल बिखेर कर कहा, क्यों नहीं, ज़रूर लाना, फिर मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी भी दिखा दूंगी। अरीबा तो खुद किताबों के इश्क में मुब्तला थी। लाइब्रेरी का सुनकर तो फौरन ही मचल उठी। उसने इसरार करते हुए कहा, किसी वक्त क्यों, अब भी दिखाए ना आपी प्लीज़। नवीन को उसके इसरार के आगे हथियार डालने पड़े। उसने अरीबा को साथ लिया और हवेली के दूसरे कोने की तरफ चल पड़ी। वहाँ पहुँच कर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अरीबा उचक कर अंदर चली गई। उस कमरे में दीवारों के साथ बहुत सारे बुक शेल्फ बने थे, जिनमें किताबें जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थी एक करीने और तरतीब से रखी हुई थी। अरीबा तो हैरान से उन किताबों के रैक को देखती रह गई। उसने शदीद मुतासिर होने वाले अंदाज में कहा, कमाल ही कर दिया आपने तो, इतनी सारी किताबें और इतने अच्छे तरीके से रखी हैं कि मैं तो हैरान हो गई हूँ। अरीबा की बात सुनकर नवीन मुस्कुराते हुए बोली, बस शौक शौक में ले ली। ये कहते हुए वो कमरे में मशरकी खिड़की की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर बाहर देखने लगी। अरीबा भी उसके करीब ही जाकर खड़ी हो गई। उस खिड़की से पुरानी हवेली नजर आती थी। दरअसल ये दोनों हवेलियां जो नई और पुरानी हवेली के नामों से पहचानी जाती थी, एक फसील के अंदर थी। वो फसील या चार दीवारी थी जो दोनों हवेलियों के अतराफ में फैली थी। पुरानी और नई हवेली के दरमियान अब काफ़ी जगह खाली थी। पुरानी हवेली में कोई नहीं रहता था। उसके बड़े से दरवाजे पर हमेशा एक मोटा सा ताला लगा होता, उस तरफ कोई नहीं जाता था। शब्बीर अहमद ने सख्ती से उस अतराफ में किसी को भी जाने से मना किया हुआ था। अरीबा ने उस हवेली को दूर से देखते हुए कहा, नवीन आपी, हम वहाँ पर चलें? नवीन ने चौंक कर उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं गुड़िया, वहाँ पर जाने से नाना जान ने सख्ती से मना किया है, हम वहाँ नहीं जा सकते। अरीबा ने कुछ हैरत से उसे देखते हुए कहा, लेकिन क्यों नवीन आपी, वो हमारी हवेली है ना। नवीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अरीबा को कैसे रोके। उसने कुछ सोचकर कहा, अरीबा गुड़िया, हम वहाँ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाना खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर। नवीन कुछ हिचकिचाते खामोश हो गई तो अरीबा ने उलझी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, वहाँ पर क्या है आपी, बताए ना, चुप क्यों हो गई हैं आप। नवीन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुना है वहाँ पर आसेबी असरात हैं, कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ अरीबा, तुम भूल कर भी उधर का रुख ना करना। समझ गई ना, नवीन ने उसे समझाते हुए पूछा। अरीबा के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ नजर आ रही थी। उसने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने पूछा, आपी, वो हवेली कब से बंद है? नवीन ने पुरानी हवेली के गेट पर नजरें जमाते हुए कहा, सही से तो मुझे भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन इसे कम से कम 50-60 साल हुए होंगे बंद हुए। दरअसल ये हवेली तब बंद की गई थी जब नाना अब्बू के वालिद यानी मेरे परनाना और तुम्हारे परदादा की बहुत ही अजीब व गरीब तरह से मौत हुई थी। सबकी आंखों के सामने उनका जिस्म झुलस गया था। हालांकि ना तो करीब कहीं आग की चिंगारी थी और ना ही उनके कपड़ों पर या जिस्म पर आग का कोई तासुर नजर आया। बस वो खड़े खड़े गिर गए और उनके जिस्म से धुआं उठने लगा। उसके साथ ही जले हुए गोश्त की सरांध हर तरफ फैल गई। बस देखते ही देखते वो एक जले हुए ढांचे में तब्दील हो गए। कोई कुछ नहीं कर सका। नाना अब्बू की अम्मी उनकी पुरस्रार मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से फोत हो गई। उस दिन के बाद नाना अब्बू ने ये हवेली बनवाई और पुरानी हवेली को हमेशा के लिए ताला लगा दिया। अरीबा खोई नजरों से उसे देखते हुए सारी बातें सुनती रही। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसी वक्त एक मुलाजमा ने आकर कहा, अरीबा बीबी, आपको बीबी जी बुला रही हैं। अरीबा डरी डरी नजरों से उस हवेली को देखते हुए चली गई। नवीन उसी खिड़की में खड़ी रही। उसके होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी। ये रात का वक्त था। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। नई हवेली के आसपास या तो रखवाली के कुत्ते हाँपने की आवाजें आती या चौकीदार के खर्राटों की। शब्बीर अहमद एक खुश मिजाज और रख रखाव वाले शख्स थे। उनकी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी,
इसी लिए उन्होंने गार्ड्स की भी भीड़ जमा करने की ज़रूरत नहीं समझी। बस एक बूढ़ा चौकीदार था, वो भी महज खाना पूरी के लिए रखा था, क्योंकि रात का ज़्यादातर हिस्सा तो वो सोता ही रहता था। नई हवेली से एक साया निकला और तेज तेज मोहतात अंदाज में चलते पुरानी हवेली की तरफ जाने लगा। उसने सर से पैर तक चोगा नुमा लिबास पहना था, जिसने उसे सर से पैर तक छुपाया था। अचानक सामने एक खूंखार कुत्ता गुर्राते हुए उसके सामने आ खड़ा हो गया। उस पुरस्रार साए नुमा वजूद को शायद इस बात का इल्म पहले से था। उसने कुत्ते के करीब आते ही चूगे से अपना हाथ निकाला तो उसके हाथ में शॉपर में गोश्त का बड़ा टुकड़ा नजर आ रहा था। उसने तेजी से शॉपर से वो गोश्त निकाला और कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही गोश्त देखा तो गुर्राना छोड़कर गोश्त पर टूट पड़ा और वो पुरस्रार चूगे वाला वहां से आगे बढ़ गया। उसे दरवाज़ा पार करने में मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि बूढ़ा चौकीदार गहरी नींद सोया था। वो तेज तेज चलता पुरानी हवेली के दाएं तरफ खड़ी दरख्तों की कतार तक पहुंच गया। वो एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से नौजवान लड़का इधर उधर देखता हुआ उसी दरख्त के करीब आ खड़ा हुआ। वो साया अचानक सामने आया तो नौजवान बौखला कर पीछे हटा। उसने एक लकड़ी उठाई और वार करने के लिए तैयार हो गया। अचानक ही साये ने अपने सर से चूगा उतारते हुए कहा, अली, ये मैं हूँ, नवीन। लड़का जिसका नाम अली था उसकी आवाज़ सुनकर लकड़ी एक तरफ फेंकते हुए बोला, नवीन, तुम रोज़ ही डरा देती हो। आज तुम इस चूगे में देखकर तो मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया। मैंने समझा कि पुरानी हवेली का वो भूत बाहर आ गया। एक तो तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती मिलने के लिए, इस भूतिया हवेली के करीब बुला लेती हो। नवीन हंस पड़ी। उसने कहा, तुम भी यही समझती हो कि वहाँ कोई भूत है? अली ने कहा, आसपास तो हर जगह यही सुनने को मिलता है, पता नहीं अब भूत है या कुछ और। नवीन उसके करीब आकर बोली, बकवास करते हैं सब, वहम है और कुछ नहीं। अली ने उसे बाहों में भर लिया और बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे में गुम वहीं खड़े रहे। फिर अचानक नवीन पीछे हटी। उसने अपना हुलिया ठीक करते हुए कहा, अब मुझे जाना है। अली ने बेचैनी से आगे बढ़कर उसे दोबारा बाहों में भरा। इतनी जल्दी? थोड़ी देर तो रुको। नवीन ने नरमी से अपना आप छुड़ाकर कहा, नहीं अली, अब तुम भी जाओ। चौकीदार के जागने से पहले मुझे वापस जाना है, वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसकी बात पर अली ने उसे अलविदाई बोसा दिया और पीछे हट गया। नवीन ने दोबारा चूगा पहना और वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। अली भी दरख्तों के पार जाते रास्ते पर गायब हो गया। अरीबा को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गई। पहले उसने बाहर झांक कर देख लिया कि अम्मी अब्बू तो नहीं जाग रहे। मुतमईन होकर वो कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गई। अगर अम्मी को पता चलता कि वो उस वक्त सोने के बजाय गेम खेल रही है तो इस बात पर शदीद किस्म की डांट पड़ जानी थी। गेम मुश्किल ज़रूर थी, मगर वो तेज़ी से एक के बाद एक लेवल खेलती जा रही थी कि अचानक कंप्यूटर स्क्रीन तारीक हो गई। बिजली फिर से गायब हो चुकी थी। अरीबा ने बेजारी से कंप्यूटर को देखा। एक तो यहाँ पर बिजली भी वक्त बे वक्त चली जाती थी। उसने अपनी जैकेट पहनी, मफलर लिया और बाहर निकल आई। सर्दी में बहुत इजाफा हो चुका था, लेकिन अरीबा बाहर निकल आई। टहलते टहलते वो नवीन के कमरे के दरवाजे पर रुक गई। उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। किसी के कमरे में इस तरह झांकना मोयूब बात थी, मगर अरीबा से रहा नहीं गया। उसने तजस्सुस के ज़ेरे असर कमरे में झांका। उस वक्त लाइट आ गई और जीरो के बल्ब की मध्यम रोशनी में उसने देख लिया कि नवीन कमरे में मौजूद नहीं। अरीबा हैरान परेशान रह गई। हो सकता है कि आप ही अपनी लाइब्रेरी में हो, यही सोचकर उसने कमरे का रुख किया जिसे नवीन अपनी लाइब्रेरी बना चुकी थी। लेकिन ये क्या? उसे झटका लगा कि वो वहाँ भी नहीं थी। आखिर कहाँ चली गई? कमरे की मशरकी खिड़की खुली थी और उससे हवा के तेज थपेड़े अंदर आ रहे थे। अरीबा खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ी कि उसकी नज़र सामने गेट पर पड़ी। कोई स्याह चोगा पहने अंदर आ रहा था। खौफ के मारे अरीबा के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन था जो उस वक्त बाहर से आ रहा था? वो खिड़की खुला ही छोड़कर बाहर भागी। उसका दिल खौफ से तेज तेज धड़क रहा था। वो अपने वालिदैन को जगाने के लिए जा रही थी। तेजी से दौड़ते हुए वो नवीन के कमरे तक पहुंची थी कि उसे टटक कर रुकना पड़ा। चूगा पहने वो शख्स उसके सामने से आ रहा था। उसने बर वक्त फैसला किया और जल्दी से सतून के पीछे खड़ी हो गई। चूगे वाला करीब आ चुका था। किधरे रोशनी में आकर उसने मोहतात नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया और चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अरीबा दमबखूद से उसे देखे जा रही थी। वो नवीन थी। अरीबा उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। नवीन चूगा उतारते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया।
अरीबा चंद लम्हे तक तो सुतून के पीछे खड़ी रही, फिर कांपती वापस आई और अपने बिस्तर में घुसकर लेट गई। उसका जहन बुरी तरह से उलझ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नवीन आखिर इतनी रात गए वहां पर गई ही क्यों थी। उसने तो कहा था कि पुरानी हवेली पर आसेबी असरात हैं, फिर वहां जाना और वो भी रात के वक्त जब सब सो रहे थे। आखिर क्यों? उसका दिल चाहा कि वो नवीन के पास जाकर पूछा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लगी और उसका जहन नींद की वादी में उतर गया। सुबह वो उठी तो सब मामूल के मुताबिक था। अरीबा को पहले तो ये ख्याल आया कि उसे उस रात जो कुछ उसने देखा था अपनी अम्मी को उससे आगाह कर देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गई। उसने नवीन से भी कुछ नहीं कहा। आज सर्दी मामूल से बहुत ज़्यादा थी। बंद कमरे में हीटर चलने के बावजूद ठंड लग रही थी, इसलिए सभी अपने कमरों में बंद थे। सिर्फ दोपहर के खाने के लिए सब इकट्ठे हुए थे और खाना खाकर दोबारा अपने कमरों में बंद हो गए। अरीबा के लिए ये मौका बेहतरीन था। उसने अपनी जैकेट पहनी, दस्ताने और मोजे चढ़ाए और घर से बाहर निकल आई। मौसम बहुत सर्द था, आसमान पर बादल छाए थे, धूप का कहीं नामो निशान भी नहीं था। चौकीदार भी अपने कमरे के अंदर कहीं दुबका हुआ था और रहा कुत्ता तो उस वक्त वो अपने जंगले में बंधा हुआ था, लेकिन वो बेखौफ होकर बाहर चली आई। पुरानी हवेली की पुरस्रार इमारत ज़्यादा दूर नहीं थी। वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच गई, लेकिन उसने गेट की तरफ जाने से गुरेज किया, क्योंकि अव्वल तो वहाँ ताला होता था जिसे वो किसी सूरत नहीं खोल सकती थी। दूसरे लाइब्रेरी वाले कमरे की खिड़की से वहाँ से उसे कोई देख सकता था। इसलिए वो पुरानी हवेली की चार दीवारी के साथ चलने लगी कि शायद यहाँ से अंदर जाने की कोई जगह नज़र आ जाए। और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि जल्दी उसे एक तरफ से टूटी हुई दीवार नज़र आ गई, जिसके साथ एक दरख्त भी मौजूद था। अरीबा ने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ऐसी बहुत गेम्स खेली थी जिनमें दरख्तों पर चढ़ना उतरना पड़ता, इसलिए उसे दरख्त पर चढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। चंद लम्हे तो वो वहीं बैठी देखती रही। यह हवेली का पिछला हिस्सा था और जाने कब से यहाँ कोई नहीं गया था, इसलिए बहुत सारा कचरा और झाड़ झंकार नजर आ रहा था। दीवार काफ़ी ऊंची थी, मगर टूटे हुए हिस्से से दूसरी तरफ जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए अरीबा को अंदर पहुंचने में दुश्वारी नहीं हुई। चंद लम्हे तक वो वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। पिछली तरफ एक लंबा चौड़ा सा बरामदा था जिसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा था, लेकिन उस पर ताला नहीं लगा था। रात में नवीन को इधर से आते देखकर उस वक्त हवेली में अरीबा को यकीन हो चुका था कि कोई जिन भूत वाली कहानी महज एक मन घड़त अफसाना है, इसलिए वो बेझिझक होकर अंदर जाने लगी। सालों से बंद दरवाज़ा जाम हो रहा था, इसलिए उसे खोलने में ज़्यादा दिक्कत और मेहनत लगी। अंदर आते ही बहुत सारी चमगादड़ें उड़ती हुई बाहर निकली। अरीबा ने डर कर अपना सर झुकाया। थोड़ी देर बाद जब चमगादड़ निकल गई तो अरीबा ने सर उठाया। उस वक्त दिन था, मगर अंदर इतना अंधेरा था गोया रात हो चुकी हो। शायद उसकी वजह धूप का ना होना। आसमान पर छाए हुए बादल थे। यहाँ आते हुए इत्तेफाक से वो अपनी छोटी सी टार्च ले आई थी। उसने जैकेट की जेब से टार्च चलाई। मोबाइल की मदम रोशनी में अरीबा ने एक बड़ा और बेशकीमत सामान से सजा हाल देखा, जिसकी छत पर खूबसूरत फानूस अवेज़ा थे। अरीबा ने हैरानी से सामान को देखकर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी सजी हुई हवेली आखिर क्यों छोड़ दी दादा ने, और इतना कीमती सामान तक नहीं निकाला यहाँ से। अरीबा भी हैरत में गुम थी कि टार्च की रोशनी में उस हाल के बाएं जानिब की दीवार पर उसे एक इंसानी साया दिखाई दिया। अरीबा ने जल्दी से अपने पीछे नज़र दौड़ाई, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सर झटकते हुए सोचा, ये शायद मेरा ही साया था। वो मुड़ी और हाल के चारों अतराफ मौजूद कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा खुद खुलता चला गया। अरीबा ने झिझक कर अंदर झांका। अंदर एक पुराने तर्ज का खूबसूरत पलंग और दीवार गिर अलमारियां थी। अभी अरीबा अंदर दाखिल हुई थी कि उसके हाथ में मौजूद टार्च जलने बुझने लगी। अरीबा ने उसके बटन ऑन ऑफ किए तो वह बिल्कुल बंद हो गई। चारों तरफ मलिक जैसा अंधेरा छा गया। अरीबा को हॉल में किसी के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बेआवाज चल रहा हो। अरीबा झटके से कमरे से निकली और हैरत ज़दा सी हाल के बीचों बीच खड़ी रह गई। उसकी हैरानी की वजह यह थी कि जब वो यहाँ आई थी तो गुप्त अंधेरा था, मगर जब वो कमरे से निकली तो एक पुराने तर्ज की लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में हाल की हर चीज़ से अजीब पुरस्रारियत झलक रही थी। उसने खुले हुए कमरे का दरवाज़ा झुककर बंद किया। जो ही वो सीधी हुई, अरीबा को हाल के कोने में मौजूद लालटेन के पास कोई खड़ा नजर आया। एक लम्हे के लिए अरीबा की नज़रों का रुख बदला कि वो शख्स ना जाने कहाँ गायब हो गया।
अरीबा धीरे से चलती हुई लालटेन के पास आ गई, मगर अब उसके सिवा यहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने अपना वहम जाना उसे, क्योंकि उसने इस हवेली के बारे में शुरू से ही अजीब कहानियाँ सुनी थी। इसलिए हवेली में अंदर दाखिल होते ही उसके अंदर का खौफ बाहर निकलकर उसे डराने लगा। अगर यहाँ कोई आसेब वगैरह होता तो वो पिछले 1 घंटे से यहाँ पर अकेली घूम रही होती, उसे मार भी सकता था। अरीबा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो वापस हवेली से बाहर जाने लगी। अरीबा का खौफ बहुत हद तक दूर हो चुका था। उसने सोचा कि वो कल भी तो आएगी। वो बाहर निकली तो उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। इससे पहले कि शाम की चाय के वक्त उसके नाम की पुकार पड़ती, वो घर वापस आ चुकी थी। रात को बिजली हस्बे मामूल चली गई और अब 2-2.5 घंटे बाद ही आनी थी। अरीबा के पास करने को कुछ नहीं था, तो रात का खाना खाने के बाद वो नवीन के पास आ गई। अरीबा के पास जितनी किताबें थी वो उन्हें पढ़ चुकी थी, इसलिए वो नवीन की लाइब्रेरी से कुछ नई लेना चाहती थी। इसलिए वो उसके कमरे तक आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से नवीन की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर अरीबा ने झांका। नवीन ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अरीबा तुम, आओ आओ बैठो, क्या चल रहा है भाई, कैसी गुजर रही है यहाँ पर जिंदगी। अरीबा ने बेदिली से उसके करीब बैठते हुए कहा, बहुत बुरी। नवीन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, क्यों, इतनी पुरसुकून और खूबसूरत जगह तो है ये, फिर तुम्हें क्यों पसंद नहीं आई। अरीबा ने उसी तरह बेजारी से जवाब देते हुए कहा, नवीन आपी, ये जगह खूबसूरत है तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ पर बहुत अकेली हो गई हूँ, यहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता, ऊपर से लाइट भी नहीं होती, कई घंटे के लिए चली जाती है। मेरे पास जो किताबें थी मैं उन्हें भी पढ़ चुकी हूँ, अब क्या करूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। नवीन ने प्यार से कहा, अरे तो क्या हुआ, मेरे पास है ना बहुत सी किताबें, जो तुम्हें पसंद है ले जाओ, बल्कि चलो मैं खुद ही तुम्हें कोई अच्छी सी किताब निकाल देती हूँ। अरीबा नवीन की बात सुनकर खुश हो गई। वो दोनों वहाँ से नवीन की लाइब्रेरी में आ गई। अरीबा ने तारीखी किताबों के रैक से किताब मुंतखब की तो नवीन ने वो उसके हाथ में थमा दी। लगता है तुम्हें भी मेरी तरह तारीखी किताबों से बहुत लगाव है, नवीन ने उसे किताब देते हुए कहा। अरीबा ने सर हिलाकर कहा, हाँ आपी, मुझे पुराने ज़माने के बारे में जानना और पुरानी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। मैं तो ये सोच कर आई थी कि दादा अबू ने यहाँ पर कोई कदीम लाइब्रेरी बना रखी होगी और मैं मज़े से वो पढ़ूंगी, पर उन्होंने तो कुछ भी ऐसा किया ही नहीं। लगता है हमारे ख़ानदान में बस हम दोनों को ही किताबों का शौक़ है, वरना कोई कदीम कुतुब खाना तो लाजमी होता यहाँ। अरीबा की बात पर नवीन ने बेसाख्ता कहा, कुतुब खाना तो था अरीबा, लेकिन उसने अचानक ही चौंक कर बात अधूरी छोड़ दी, जैसे वो इस मौजू पर कुछ भी कहना नहीं चाहती हो। लेकिन अरीबा ने उसकी बात फ़ौरन पकड़ ली और पूछा, लेकिन क्या आपी, आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना। नवीन बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अरीबा ने बेहद इसरार किया तो मजबूरन उसने उसे सारी बात बताने पर राज़ी होते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस बारे में किसी और को कुछ नहीं बताओगी। अरीबा ने झट से सर हिलाते हुए कहा, पक्का वादा, किसी से कुछ नहीं कहूँगी। नवीन ने बाहर राहदारी में झांका। किसी को न पाकर वो मुतमईन हो गई। फिर वापस आकर अरीबा के पास बैठते हुए बताने लगी, ये तो जानती हो ना कि यह हवेली नाना अब्बू ने अपने वालिद की अजीबोगरीब मौत होने के बाद बनवाई थी। दरअसल नाना अब्बू के वालिद के बारे में कहा जाता था कि वो काले जादू से मुंसलिक थे, इसीलिए उनकी मौत भी बड़े खौफनाक तरीके से हुई थी। शायद उनका कोई अमल उल्टा पड़ गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। उन्होंने पुरानी हवेली में एक बहुत ही बड़े कमरे में बहुत सारी किताबें जमा कर रखी थी, जिनमें से कुछ कुतुब बहुत ही खौफनाक और अजीब थी। उनमें से कुछ काले जादू के अमल वगैरह उनमें लिखे हुए थे। उनके मरने के बाद नाना अबू, जो उस वक्त 19-20 साल के होंगे, उन्हें बड़े ही अजीब व गरीब ख्वाब नजर आने लगे। उन्होंने क्या देखा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसके बाद उन्होंने वालिद की जमा की गई सारी किताबें तय खाने में डलवा दी और वह हवेली ही छोड़ दी। इस तरह वो कुतुब खाना हर शख्स की दस्तरस से दूर हो गया। अरीबा हैरत से सब सुन रही थी। उसे हैरत तो इस बात पर थी कि आज तक बाबा या अम्मी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। उसने तजस्सुस के आलम में पूछा, लेकिन आपी, आपको ये सब कैसे पता चला? क्या दादा अब्बू ने बताया था? नवीन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो तो इस बारे में मुझे कुछ बात ही नहीं करते। ये तो कुछ अर्सा पहले कोई मेहमान आए थे उनसे मिलने, वो लोग इस बारे में बातें कर रहे थे तो मैंने वहाँ से गुजरते हुए सुन ली, वरना तो शायद मुझे कभी भी ना पता चलता कि नाना अब्बू अपने अब्बा के जिक्र पर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं। काला जादू करना कोई अच्छी बात नहीं होती, बल्कि इस्लाम में ये सख्त गुनाह है। शायद वो इसीलिए दुखी हो जाते थे कि उनके वालिद ने गलत रास्ते का इंतखाब किया और उसी पर मर गए।
इसीलिए उन्होंने अपने बाप की कोई तस्वीर भी नहीं रखी अपने पास। अरीबा ने पुरजोश लहजे में कहा, नवीन आपी, क्यों ना हम पुरानी हवेली चलकर देखें और उन किताबों को ढूंढें। नवीन उसकी बात पर चौंक कर उसे देखने लगी और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं अरीबा, हम वहाँ नहीं जा सकते। वो जगह मनहूस है और सालों से बंद पड़ी है, उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। अब चलो, यहाँ बहुत सर्दी लग रही है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भी जा रही हूँ। अरीबा दिल महसूस कर रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नवीन खुद तो वहाँ पर छुप कर रात को भी चली जाती है, लेकिन अरीबा के साथ जाने से इनकार क्यों करती है। पुरानी हवेली में तो जाकर वो देख आई थी और वहाँ पर उसे बिल्कुल डर नहीं लगा था, लेकिन इस बारे में उसने नवीन से कुछ नहीं कहा। वो जान गई थी कि नवीन उसकी बात पर तो शायद यकीन नहीं करे, बल्कि उसे आइंदा के लिए वहाँ जाने से भी मना कर दे। लेकिन ये बात उसने खुद तक महदूद रखी और किताब उठाकर नवीन को अलविदा कहते अपने कमरे में आ गई। उसने बिस्तर में लेटकर अच्छे से कंबल लपेटा और लाइट जलाकर किताब पढ़ने लगी। ये एक तारीखी नॉवल था, बहुत दिलचस्प था। उसकी कहानी उसे बहुत अच्छी लग रही थी और वो उसमें मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी कि अचानक खटके की आवाज़ ने उसका ध्यान बटा लिया। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। आवाज़ की कोई वजह समझ नहीं आई तो दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जे हो गई। चंद लम्हे बाद दोबारा खटका सुनाई दिया। इस बार आवाज़ बहुत वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पीछे वाली खिड़की को बजाया हो। अरीबा ने किताब बंद की और खिड़की की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद भी वैसे ही दस्तक सुनाई दी तो वो चंद लम्हे तक हिचकिचाती रही, फिर आगे बढ़कर खिड़की की तरफ देखने लगी। उसने खिड़की से पर्दा हटा लिया। बाहर धुंध और अंधेरा छाया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की खोलूं या नहीं? वो थोड़ी देर तक गो की कैफियत में खड़ी रही। फिर उसने टार्च की रोशनी खिड़की पर फेंकी और अगले ही लम्हे जो नजर आया उसने उसे लर्जा कर रख दिया। खिड़की के शीशे पर कोई नाक टिकाए खड़ा था, लेकिन अरीबा के खौफजदा होने की वजह उसका चेहरा था। वो बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था, जैसे उसके अंदर खून का एक कतरा भी नहीं था। उसके होंठ गायब थे, बड़े बड़े और लंबे लंबे दांत बाहर झांक रहे थे। नाक गायब थी और नाक की जगह महज 2 छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे थे। अरीबा को अपनी तरफ देखते पाकर उसने बातचीत फैला दी। शायद अपने तय वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अरीबा की तो मारे खौफ के घुग्गी बंद गई। वो चीख मार कर बाहर भागी और अंधाधुंध दौड़ती नवीन के कमरे में घुसी। नवीन शायद अब सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक धड़ से दरवाज़ा खुलने और अरीबा को पागलों की तरह दौड़कर अंदर आते देखकर बुरी तरह से बौखला गई। वो घबराकर छलांग मारकर बिस्तर से निकली और अरीबा को थामते हुए बोली, क्या हुआ अरीबा, ऐसे क्यों भाग रही हो? इतनी डरी क्यों हो? क्या हुआ है? अरीबा के मुंह से आवाज़ निकल रही थी। उसने कुछ कहे बगैर दरवाजे की कुंडी लगाई और नवीन से लिपट गई। वो सर से पैर तक बुरी तरह कांप रही थी। नवीन परेशान हो गई। वो अरीबा को अपने साथ लगाए लगाए बिस्तर तक लाई और उसे कंबल उड़ाकर खुद भी करीब बैठ गई। नवीन की मौजूदगी से अरीबा को काफ़ी हौसला मिला। चंद लम्हे बाद उसका खुद कुछ कम हुआ खौफ, तो वो बात करने के काबिल हुई। उसने जो कुछ देखा उसके बारे में नवीन को बताया। नवीन हैरत और बेयकीनी से उसे सुनती रही और मशकूक नज़रों से अरीबा को देखते हुए कहा, अरीबा, क्या तुमने सच में किसी को देखा था? मेरा मतलब है तुम्हें नींद में कोई ख्वाब तो नहीं आया? या फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ हो। अरीबा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए पुरयकीन लहजे से कहा, नहीं आपी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, ना ही मेरा वहम था। वो सच में खिड़की पर मौजूद था, मुझे देखकर दांत निकोस रहा था। उसकी दांत निकोसने वाली बात पर नवीन को हंसी आई, मगर उसने जब्त करके कहा, अच्छा ऐसा करो, आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंको, कुछ नहीं होगा। बल्कि ऐसा करो, आज मेरे पास ही सो जाओ। उसने अरीबा के दिल की बात कह दी थी। वो खुद भी उस कमरे में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वहीं पर नवीन के पहलू में लेट गई। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। अभी तक वो उसे खौफ के ज़ेरे असर थी, लेकिन कहते ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। सो कुछ देर बाद उसे नींद ने अपनी मेहरबान आगोश में भर लिया। सुबह वो उठी तो उसका जहन रोज़ की तरह तरोताज़ा नहीं था। एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उठ गई, इसलिए अम्मी को पता नहीं चला था कि वो अपने कमरे में नहीं सोई। उसने रात वाले वाक़े के बारे में भी अम्मी या बाबा को कुछ नहीं बताया। सुबह उठकर वो डरते डरते खिड़की के करीब गई और उसे खोलकर बाहर झांकने लगी। वहाँ कुछ नहीं था। फिर कुछ सोचकर बाहर चली गई। लॉन में पहुंच कर उसने अपने कमरे की खिड़की के नीचे देखा, लेकिन वहाँ भी किसी के कदमों के निशान नहीं थे। वो उलझते हुए पलट आई। हो सकता है नवीन आप ही ठीक कह रही हूँ, ये मेरा वहम हो।
दिन में भूत प्रेत और काले जादू की बातें सुनकर मेरे जहन में कोई तस्वुर बैठ गया हो और उसने रात को हकीकी शक्ल इख्तियार कर ली हो। उसने ये सोचकर खुद को मुतमईन किया। नाश्ते के बाद वो दोबारा किताब पढ़ने लगी। स्कूल में आगे अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ था और बाकी कोई और मसरूफियत नहीं थी। अम्मी वैसे भी हैदर के साथ मसरूफ़ रहा करती थी और बाबा दादा अब्बू के साथ जायदाद और ज़मीनों के मसाइल में उलझे रहते, इसलिए उसके पास फुर्सत थी और फारिग वक्त में किताबों के ज़रिए ही वो वक्त पास कर रही थी। दोपहर तक उसने सारी किताबें पढ़ ली और नवीन से दूसरी किताब मांगने जा रही थी कि अचानक उसे पुरानी हवेली का ख्याल आया। उसे याद आया कि नवीन ने पुराने कुतुब खाने का जिक्र किया था। सर्दी के बायस हर कोई अपने कमरे में बंद था। पहले की तरह ही अरीबा आज भी निकल खड़ी हुई। मौसम वैसा ही था, आसमान पर बादल छाए थे। चौकीदार को चकमा देना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सो वो बड़े आराम से निकल आई। पिछली दफ़ा की तरह आज भी वो टूटी हुई दीवार से अंदर आई थी। यहाँ सब वैसा था जैसे वो पहले देख कर गई थी। आज वो बेझिझक होकर यहाँ घूम रही थी। एक एक कमरे को देखते वो एक कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से बदबू का भुभका बाहर आया। चंद लम्हे के लिए तो अरीबा का सर चकरा गया। उसने चुटकी से नाक बंद कर ली। हवास कुछ बहाल हुए तो दरवाजे को पूरा खोलते अंदर कदम रखा। उसे अंदर बदबू के साथ बेपनाह गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन सब नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ गई। ये कमरा भी दूसरे कमरों की तरह ही था, मगर अजीब बात यह थी कि यह कुछ खाली खाली लग रहा था। बस दीवारों के साथ एक दो खाली रैक रखे हुए थे और फर्श पर एक गद्दा पड़ा था जो मिट्टी में लुथड़ा हुआ था। उसे उस कमरे में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई, इसलिए वो बाहर निकलने लगी। जाते हुए अचानक उसका पैर गद्दे से टकराया तो वो लड़खड़ा गई। सहारे के लिए उसने दीवार के साथ पड़े रैक को थामा तो अपनी जगह से कुछ हिल गया, लेकिन दूसरे ही पल कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो रैक अपनी जगह से घूमने लगा। अरीबा जल्दी से एक तरफ हट गई और हैरानी से घूमते हुए रैक को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उस रैक की जगह पर एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। अरीबा चंद लम्हे तो कुछ सोचती रही, फिर टार्च जलाते हुए आगे बढ़कर देखा। नीचे सीढ़ियाँ जाती दिखाई दे रही थी। वो उनके जरिए नीचे उतरने लगी। चंद लम्हे बाद वो उस हवेली के तहखाने में खड़ी थी। उसे नवीन की बातों पर कुछ यकीन आया और कुछ नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ हर तरफ बिखरी हुई किताबें देखकर उसे उस बात की सच्चाई में कोई शुबा नहीं रहा था। वो उन्हें देखने लगी। कुछ किताबें दीवारों के साथ लगे शेल्फों में रखी थी, कुछ फर्श पर ढेर की शक्ल में जमा थी जिनमें दीमक लग चुकी थी। बहुत सी किताबों की जिल्दें स्याह थी और कुछ पर अजीबोगरीब तस्वीरें बनी थी, लेकिन अरीबा की तवज्जो कमरे के दरमियान रखी एक मेज़ ने खींची। उस मेज़ पर स्याह कपड़े में लिपटी एक मोटी और बड़ी किताब रखी थी। उस किताब से सब्ज रंग की रोशनी फूट रही थी। अरीबा ने झिझक कर चंद कदम उठाते हुए उस मेज़ के करीब पहुंच कर देखा। ये किताब कोई आम नहीं लग रही थी। अरीबा ने बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी पढ़ी। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद अरीबा का दिल कुछ मुतमईन हुआ तो उसने किताब पर लिपटा स्याह रंग का कपड़ा खोलना शुरू किया। अरीबा ने जैसे ही स्याह कपड़ा किताब पर से हटाया, किताब से फूटती सब्ज रंग की रोशनी मजीद तेज हो गई और उस रोशनी से सारा कमरा मुनव्वर हो गया। अरीबा ने धड़कते दिल से किताब खोली। किताब खुलने के साथ ही जोरदार हवाएं चलने लगी। दरवाजे, खिड़कियां सब जोरदार आवाज से बजने लगे। ऐसे लग रहा था गोया हवा के जोरदार दबाव से उखड़ जाएगा सब। अरीबा ने आयतुल कुर्सी का विर्द और भी तेज करना शुरू कर दिया। अचानक ही अरीबा हकदक रह गई क्योंकि किताब के अंदर से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी। अरीबा ये सुनकर खौफज़दा हो गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए सहमी आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? दूसरे लम्हे जो उसने देखा वो ऐसा नाकाबिल यकीन मंजर था कि उसे आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने कदमों तले से ज़मीन निकलती महसूस की। किताब में से फिर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मैं एक जिन ज़ादा हूँ, मेरा नाम ज़रगाम है। मुझे तुम्हारे दादा ने कई बरस कबल इस किताब में कैद किया था। तुम्हारा दादा काला जादू करता था और अपने जादू से कई लोगों को तकलीफ में मुब्तला करता था। उसने अपने हमजाद को भी काबू किया था। उसका हमजाद भी यहाँ मौजूद है। अरीबा ने जिनजादे ज़रगाम की बात सुनी और शौक में आ गई। दूसरे बच्चों की तरह उसे भी अपने अब्बा अजदाद पर फ़ख्र था, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके परदादा ऐसे इंसान निकलेंगे जिसके बारे में अरीबा ने सोचा तक नहीं था। अभी वो शौक से नहीं निकली थी कि कमरे के कोने में पड़े मिट्टी के एक मटके से स्याह धुआं उठने लगा। अरीबा आंखें फाड़े देखती रही। वो स्याह धुआं इंसानी खुदोखाल इख्तियार कर रहा था। कुछ देर बाद धुएं की जगह एक शख्स खड़ा था जो अरीबा को घूर रहा था। वो वही था जो उस रात खिड़की पर नजर आया था। वही सफ़ेद निचड़ा हुआ चेहरा, खौफनाक आंखें, नाक और होंठों के बगैर दिखाई देने वाली सूरत। अरीबा ने डरते हाथों से मेज़ पर रखी हुई किताब पकड़ ली।
کتاب پکڑتے ہی کتاب میں قید زرگام جنزادے نے کہا، اریبا اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، یہاں میری طاقت کم ہے۔ باہر جا کر موزتین 3 بار پڑھو، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پردادا کا ہمزاد ہم دونوں کو ختم کر دے۔ مگر اریبا کی ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سفید چہرے والے خوفناک شخص کی طرف دیکھا۔ اس نے اریبا کو دیکھتے اپنی خوفناک آواز میں کہا، تم میری پوتی ہو اور میں تمہارا دادا ہوں، اس لیے تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ اس کتاب کو بند کر دو۔ کتنی مشقت سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اریبا کی ایسی حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئی۔ وہ سفید چہرے والا شخص آگے بڑھتے ہوئے بولا، تمہیں میرا بتایا گیا ایک عمل پورا کرنا ہوگا۔ اس کتاب کے پہلے ورق پر جو لکھا ہوا منتر ہے وہ اوپر والے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا ہوگا۔ جیسے ہی تم 7 بار یہ منتر پڑھو گی تمہارے سامنے ایک الو آ کر گرے گا۔ تم نے اس کے جسم میں چبھی سوئیاں نکالنی ہیں اور بس میں آزاد ہو جاؤں گا۔ مجھے میری طاقت واپس مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی وہ تمہاری دسترس میں ہوگی۔ اریبا نے روحان سی آواز میں کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اریبا کی بات سن کر اس کا چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گی تو یہاں سے زندہ نہیں نکل سکو گی۔ اریبا نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا اور اچانک ہی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ کتاب اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے مرے ہوئے دادا کو چکمہ دے کر باہر بھاگ جائے گی، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ جو ہی وہ دروازے پر پہنچی دروازہ کٹاک سے بند ہو گیا اور اسے کھولنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ دروازے پر پھر سے وہی بھیانک چہرہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے کہا نا، تم میری بات نہیں مانو گی تو یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر اچانک اریبا کے دماغ میں ایک سوچ ابھری اور اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم پھر مجھے جانے دو گے؟ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اریبا نے آمادگی ظاہر کر دی تو وہ وہاں سے ہٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ باہر کمرے میں آتے ہی اریبا کھانستے ہوئے چیخنے لگی، میرا دم گھٹ رہا ہے، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ ہمزاد نے کہا، اس کمرے سے باہر جاؤ، تمہیں وہیں پر عمل کرنا ہوگا۔ اریبا باہر آ گئی۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ ہمزاد نے اس کے ہاتھوں بے وقوف بن کر اسے باہر نکلنے کا موقع دے دیا تھا۔ ہال میں کھڑے ہو کر اس نے پہلے تو خود پر آیت الکرسی پڑھ کر اور پھر ارد گرد پڑھ کر پھونکی اور پھر وہ موزتین پڑھتے ہوئے کتاب کو کھولنے لگ گئی۔ ہمزاد ٹھٹک کر رہ گیا اور پھر شدید آواز میں چیخنے لگا، یہ مت کرو، یہ تم کیا کر رہی ہو اریبا؟ میری محنت کو مٹی میں نہ ملاؤ، یہ غداری ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اریبا نے اس کی طرف سے اپنے کان بالکل بند کر لیے تھے اور موزتین کا ورد مکمل ہوتے ہی اس کتاب میں سے سبز روشنی باہر نکل کر ایک مجسم صورت اختیار کرنے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اریبا نے اسے ایک انسانی روپ میں آتے دیکھا۔ وہ ایک سفید ریش جن تھا۔ ہمزاد اور جن کے درمیان شدید قسم کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی بے حد خوفناک شکلیں اختیار کرنے لگے۔ اریبا اب کسی نہ کسی حد تک اپنے خوف اور اپنے اعصاب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ سب دیکھ کر اب اس کی آواز بالکل اس کا ساتھ چھوڑنے لگے اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ دوبارہ جب اریبا کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور سبھی اس کے بستر کے ارد گرد جمع ہوئے تھے۔ ایک طرف زرگام جن بھی وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ ان سب لوگوں کو بتا دیا تھا۔ وہ خوفناک ہمزاد جن زرگام جن کے ہاتھوں شکست کھا کر بری طرح سے فنا ہو چکا تھا، اور پھر اس کے خاتمے کے ساتھ ہی اس پرانی حویلی میں شدید خوفناک قسم کی آگ بھڑک اٹھے تھے۔ آگ بھڑکنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر وہ ساری کی ساری پرانی حویلی جل کر راکھ ہو چکی تھی، اور یہ سب کرنے میں اریبا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ زرگام جن نے جاتے جاتے اریبا کا بہت شکریہ ادا کیا اور شکریہ کے طور پر اسے بہت سارے تحائف بھی دیے تھے۔ اب علی اور نوین کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ اریبا بھی اب جوان ہو چکی ہے
اور بہت جلد اس کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس بات کو آج 10 سال گزر چکے ہیں، مگر اب بھی کبھی کبھی اریبہ کی اپنے گھر والوں سے اس موضوع پر بات ہوتی ہے تو وہ زرغام جن کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔